अगर मैं एक गिलास बेच रहा हूँ तो अगर तो वो गिलास ही जा रहा है तो कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देता आज की डेट में। आजकल कस्टमर बहुत फिनिके हो गया। अगर वो गिलास जा रहा है, अगर वो गिलास टूटा पहुंचा तो कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देगा। हालांकि उसमें जो गलती होगी वो कुरियर टीम की होगी या जो अमेजन पार्टनर्स है उनकी गलती होगी, पर वो कस्टमर फीडबैक। अगर मैं उस गिलास की जगह उसको सोने का गिलास भेज दूँ तो वो बहुत अच्छा फीडबैक देगा। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। Good afternoon, Gaurav Arora sir. गुड आफ्टरनून जी। We are here to learn from your entrepreneurial journey. थैंक यू। We're students of KCC ITM MBA. Yeah. आप बताइए, आप अपने वर्ड्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए इनवेलो के बाद। So we started Velo almost 4 years back, and we are a sustainable hygiene company, and we produce so many hygiene products which are daily use. We have a different category product. We have a paper-based product. We have a kitchen-based product for the kitchen hygiene, product for the bathroom hygiene, product for the oral hygiene, product for the even for the hair and personal care hygiene. We have the products. So this is the entire range we have. So all of these products are sustainable, eco-friendly, are plastic-free. The kind of material we use are eco-friendly, are organic and chemical-free, and plus the packaging and the material we use, that's a plastic-free packaging, and everything is plastic-free over here. Okay, so what inspired you to start Invelo? So we started during the COVID actually. So what happened when in COVID everybody was struggling with these health and hygiene issues. So we started to coming up with this brand because these kind of product has a huge potential in India. If you compare the overall data, approximately 4% of people are there in India which are actually using these toilet paper and kitchen towel paper kind of paper-based product basically. So we see the potential in the market. We see the pattern changing in the consumer behavior because people were shifting to these kind of hygiene products, and then we come up with this idea. We'll make these kind of products, and we started with 6 and 7 kind of products. Now we have approximately 50 SKUs in this particular category. सो या सर, आपने अभी हमें बताया दैट इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते नहीं. सो हाउ डिड यू कन्विंस द मार्केट टू शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स टू द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स लाइक बेसिकली what's good name, sorry? जागृति. So जागृति, what happened actually कि अगर आप देखोगे अभी भी ट्रेडिशनली अगर मैं कंपेयर विद द किचन हाइजीन प्रोडक्ट, हमारा जो किचन टॉवल है, तो जो अभी भी कन्वेंशनली आप किचन में जाओगे तो लोग वो कपड़े वाला है पौना टाइप जो होता है वही यूज़ करते हैं. ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दैट कपड़ा टू अ पेपर because so we are marketing in that way particularly, and this is the first catch which we did. We are marketing in that way, particular paper based product that is good for the hygiene, good for the kitchen hygiene, good for the usage, because if you use that kapda again and again, you know, that has germs on it, that has bacteria on it, which will harm your health, which will create a bad bad for your, it's bad for your health basically. So this is how we are marketing. And second, what we did, we created a small SKUs. Generally, if you'll see in the market, if as a brand Invelo, if I'll tell you what we did, if you'll see in what other brands are, see, tissue paper is a very old product in India. It's not a new product. So if you'll see the market, there are bigger SKUs available. So people, the other brands are selling in volume and bigger SKUs, a pack of 10, pack of 20, pack of 30 pieces. They're selling in volumes. So we come up with the idea that we'll create a smaller SKUs. We'll create a pack of 3 toilet papers. We'll create a pack of 1 kitchen towel. We'll create a smaller tissue box which you can try and use it. Then you can throw it. So we came up with that idea. So it should not be heavy to your pocket also. It should be pocket friendly also, and it should be, you can easily buy and you can try it, and then you'll get to use to it again and again. This is the idea behind it. So as you said that the market is very resistant towards this product. Right. So how do you plan to position your products in the market? So we are positioning our brand as a sustainable eco-friendly brand, which is good for your health and which is good for the equally for the environment. So as I already told you, we are not using any kind of plastic in our product. It's a plastic-free company. Even our stationery in the office, it's also a plastic-free. Even we are a 100% D2C brand. We don't sell our product. We sell our product to online only, as through Amazon, Flipkart, and other channels what are available in the market. So जितने भी है channels पे हम जो माल बेचते हैं, जो पैकिंग भेजते हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट जाता है, वो सारा ही प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में जाता है. इट इज़ नॉट वी आर नॉट इवन यूजिंग अ सिंगल काइंड ऑफ प्लास्टिक इन दैट. प्लस अगर करना भी पड़ता है प्लास्टिक, कई बार हमें करना भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री पॉसिबल है पैकेजिंग, देन वी आर यूजिंग अ रिसाइकलेबल प्लास्टिक मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. या we are not using a single use plastic in our product. So as your tagline says that green your hygiene. Green your hygiene, yeah. So basically I want to know that how Invelo ensure it's operational to run smooth day by day.
on the daily basis? So in operation, see, first we need to understand what kind of operations we are into. So in D2C, we have majority is 3 kind of operations. One is the e-commerce data management, what we have. Second is order processing. Third is the product supply management. So we are a manufacturer ourselves. We have in-house manufacturing setup with us. तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट बनता है, जो ऑनलाइन बिकता है, चाहे अमेजोन पे बिके, चाहे फ्लिपकार्ट पे बिके, चाहे मीशो पे बिके, वो सारा हम खुद बनाते हैं. It is 100% in-house manufacturing. We are not trading products from outside. So this is how we are ensuring the supply actually. So second, in terms of operation management, we have created a system in our office. Actually, if we have to dispatch 2,000 orders for tomorrow, so that order will be ready with us today only. So we have created that kind of system with the different kind of packaging, systematic packaging, different kind of product SKU we have created. The listing we have done online, जो हमने online listing करी है, वो भी इस हिसाब से करी है so that we can dispatch that product quickly and easily. So this is how we did. गौरव सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे कोई भी कंपनी है उसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ती है अगर उसको लेवरेज करना है. तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी जब ई कॉमर्स की बात आती है? So e-commerce में if we talk about the technology part, so there are different kind of software we use basically. फर्स्ट जो ई-कॉमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर वो होता है कि डेटा साइंस मैनेजमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम ऑडियंस का जो डेटा होता है उसको स्टडी करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं, किस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, मतलब उसका डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, इवन हर तरीके से उसका एनालिसिस होता है कि किस तरीके का ऑर्डर है, बंदा किस पैटर्न में ऑर्डर कर रहा है, कोई 2 चीज़ें आइटम ऑर्डर कर रहा है, कोई 2 के साथ ये भी आइटम ऑर्डर कर रहा है, कोई बंदा हमारे ब्रांड के साथ दूसरे ब्रांड का आइटम भी ऑर्डर कर रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा गार्बेज बैग लिया, डस्टबिन किसी और का लिया, जैसे हमारा बटर पेपर लिया, बटर पेपर का स्टैंड किसी और कंपनी का लिया. सो वी स्टडी दैट पैटर्न, दैट हेल्प्स अस इन एक्चुअली टू ग्रोइंग आवर एसक्यूज पोर्टफोलियो, कि हम उस तरीके का प्रोडक्ट और लाएंगे तो उससे हम और स्केल कर पाएंगे. सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ई-कॉमर्स, विच इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री है दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड द ई-कॉमर्स इन्वेंट्री इज़ टोटली डिफरेंट. ई-कॉमर्स की जो इन्वेंट्री है वो सारी डिपेंड करती है आपकी लिस्टिंग्स पे, आपने किस तरीके की लिस्टिंग कर रखी है, आपने 2 प्रोडक्ट को साथ में लिस्ट कर रखा है, 2 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को अलग कर रखा है साथ में, या फिर आपने एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 कॉम्बोज में बेसिकली यू सेल जनरली. तो उस तरीके उसको मैनेज करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली वी यूज़ दैट. तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हम यूज़ करते हैं. यूनिकॉमर्स है, ईजी कॉमर्स है, देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट. वी यूज़ दो सॉफ्टवेयर एंड फॉर द डेटा साइंस विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के लिए उसके लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल विच आर लाइक हीलियम हो गया आपका जो अमेजन टूल है, देन अमेजन पाई है. इफ़ यू आर अ गुड सेलर ऑन अमेजन तो यू विल गेट द एक्सेस ऑफ अमेजन पाई. जनरली वो हर एक को मिलता नहीं है, तो अमेजन पाई हमारे पास है, तो उस पर हम डेटा स्टडी करते हैं. देन बाकी आजकल बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे सफ़ायर है जो जहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सफ़ायर है, इको होए है, देन सस्टेन कार्ट है. इन पे क्या है कि सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बिकते हैं. तो इनमें क्या होता है कि इनके लिए हमें स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो मैंने आपको बताया, यूनिकॉमर्स हो गया, ईजी शिफ्ट हो गया, ईजी कॉमर्स हो गया. सो दीज टूल्स वी आर एक्चुअली यूजिंग टू स्केल आवर बिजनेस. और सर आपको कस्टमर फीडबैक किस तरह से मिलता है, और व्हाट इज द लाइक मोस्ट बिजार कस्टमर फीडबैक यू हैव एवर गॉटन? बिजार है मतलब देखो, बहुत बुरे से बड़ा, घटिया से घटिया फीडबैक भी मिला है हमें, और अच्छे से अच्छा भी मिला है. सो इट ऑल सी, आप जब व्हेन यू आर सेलिंग ऑनलाइन, so people are not actually touching your product, actually seeing your product. They are seeing it on visually on a screen or a TV screen or a mobile screen. So जो एक्चुअल जो टीवी पे देखेगा, जो मोबाइल पे देखेगा, जो सिस्टम पे देखेगा, और जो एक्चुअल प्रोडक्ट देखेगा वो हमेशा डिफरेंट ही होगा, कभी वो सेम हो नहीं सकता. आप कितना भी उसको इमेज में अच्छा फोटो खींच के कर लो, पर वो अच्छा ऐसा हो नहीं सकता. सो द डिटेल्ड जो प्रोडक्ट की आप डाल रहे हो ई कॉमर्स में, वो दैट शुड बी वेरी क्लियर. सो उसके बेसिस पे आप बहुत सेफ हो जाते हो. See, for example, if I'm putting a listing of a kitchen towel or a butter paper, so I should actually mention what paper I am using, what kind of meter I am giving, what kind of the product feature it has, कि क्या क्या उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन क्या है. अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को घंटा नहीं पता कि प्रोडक्ट यूज़ कैसे कर रहे हैं. अब अगर मैं किचन टावल की बात करूं, अब किचन टावल में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर तो शेल्फ क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, पर एक्चुअली में किचन टावल के बहुत यूज है. हैंड क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूटेंसिल क्लीन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन. तो वो उन एप्लीकेशन को ब्रेन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, हम उसके हिसाब से लिस्टिंग क्रिएट करते हैं. उस लिस्टिंग से ही आगे
प्रोडक्ट सेल होता है, अगर आपका वो एक्यूरेट है तो देन यू विल गेट द गुड फीडबैक, बिकॉज वट एवर यू आर सेइंग टू द कस्टमर यू आर सेंडिंग सेम प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो उस केस में तो आपको बढ़िया रिव्यू आ जाएगा। अगर अब कस्टमर बहुत फिनकी है आज की डेट में, अगर देखा जाए सो रिव्यू एक ऐसा फैक्टर है। इफ़ आई एम गिविंग एग्जांपल, अगर मैं एक गिलास बेच रहा हूँ, तो अगर तो वो गिलास ही जा रहा है तो कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देता आज की डेट में। आजकल कस्टमर बहुत फिनके हो गया। अगर वो गिलास जा रहा है, अगर वो गिलास टूटा पहुँचा तो कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देगा, हालांकि उसमें जो गलती होगी वो कुरियर टीम की होगी या जो अमेज़न पार्टनर्स हैं उनकी गलती होगी, पर वो कस्टमर फीडबैक। अगर मैं उस गिलास की जगह उसको सोने का गिलास भेज दूँ तो वो बहुत अच्छा फीडबैक देगा। सो दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। तो अच्छा फीडबैक लाना अपने लिए चैलेंज होगा। मार्केट में लोग बहुत सारे तरीके बनाते हैं, आई मीन दे सेंड कार्ड, उसके साथ जाता है कि आप पॉजिटिव फीडबैक दे। पीपल डोंट केयर एक्चुअली आज की डेट में। तो कस्टमर है बहुत ही वो फ्री माइंडेड हो गया है, और स्पेशली जिस कैटेगरी में हम डील करते हैं, ये टिश्यू पेपर कैटेगरी में, पीपल आर नॉट बॉदर्ड एक्चुअली। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं, कंप्लेंट्स की बात करूं, हमारे पास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फैशन इंडस्ट्री, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज अवेलेबल इन द मार्केट। जो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा वो सबसे ज़्यादा फैशन में होगा, क्योंकि वहाँ पे साइज़ इशू, कलर इशू, अब किसी को मजेंटा पिंक चाहिए था, पर्पल पिंक मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो वो वाला इशू हमारे साथ ये, क्योंकि टिश्यू पेपर है, पीपल जल्दी, जैसे मैंने फेशियल टिश्यू का बॉक्स भेजा किसी को, तो अगर थोड़ा बहुत मुड़ गया है डिस्पैच में, तो बहुत सारे कस्टमर जो रख लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी जो कहते हैं यार वापस भेज, मेरे को पूरा साफ सुथरा डब्बा चाहिए, तो ऐसे भी है। तो इट्स ऑल द फीडबैक, इट मैटर्स टू द कंपनी, इट मैटर्स टू अस, वी रिक्वायर द फीडबैक टू ग्रो आवर बिजनेस, बिकॉज अगर अच्छा फीडबैक होगा तो जो प्लेटफॉर्म है अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट को ग्रो करता है ऑनलाइन। वो विजिबिलिटी उतनी तभी देगा व्हेन यू हैव अ गुड रिव्यू एंड गुड रेटिंग ऑन द प्रोडक्ट। सो वो तभी हो पाता है, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर सेलिंग एंड हाउ यू आर बिहेविंग। ओवरऑल अगर बात करें रिव्यूज़ की, हमारे एवरेज जो रेटिंग है वो 4 की रेटिंग है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे, ई कॉमर्स पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे। एवरेज हमारा सेलर रेटिंग भी 4.2 के आसपास है। एंड हमारे पास ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारे पास चांसेस कम रहते हैं नेगेटिव रिव्यू आने के, तो ऐसे उस तरीके के SKU ऐड करें। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू क्रिएट कर रहा है, वो नहीं फिजिबल आ रहा है, तो उसको हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसमें इंप्रूवमेंट ढूंढते हैं, उसको कैसे इंप्रूव करें, फिर उसको दोबारा रीलॉन्च करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं। Sir, how does Invelo manage the manufacturing of the products? वी डू फोरकास्टिंग बेसिकली, कि ऑनलाइन में हमारे पास डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, वीकली बेसिस पे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, देन मंथली डेटा बेसिस पे कितने आ रहे हैं, एंड सिमिलरली फेस्टिवल्स के टाइम पे कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ऑनलाइन की जनरली जो सेल है उसका जो पीरियड होता है वो फेस्टिवल के टाइम काफ़ी बूस्ट करता है, स्पेशली दिवाली और होली के टाइम। तो वही है हमारे जिनके पास फेस्टिवल रेंज होगा तो उनके ऑर्डर्स तो बूस्ट करेंगे। वैसे हमारे पास फेस्टिवल रेंज, जैसे हमारे पास होली, अभी होली आ रही है तो हमारे पास हर्बल होली गुलाल है, तो हमारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली बूस्ट करेंगे होली के दौरान। ऐसे ही हमारे पास कैंडल्स हैं जो दिवाली के टाइम पे हमारी बूस्ट कराती हैं सेल्स, तो उसका फोरकास्टिंग करके रखना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस डेटा जो होता है। जैसे कि पिछले 6 महीने में कितने ऑर्डर आ रहे हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज मंथली या डेली कंजम्पशन कितना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उस कंजम्पशन को माइंड में रखते हुए वी क्रिएट ए इन्वेंट्री, हम उसका स्टॉक अरेंज करके रखते हैं मार्केट से। जो भी उसका डेटा जो भी उसका सामान होता है वो अरेंज रखना पड़ता है हमें। कई बार होता भी है कि प्रोडक्ट डिलीट करना पड़े, प्रोडक्ट हमें बंद करना पड़े, ताकि क्योंकि इन्वेंट्री के बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, सब्जेक्ट टू मार्केट अवेलेबिलिटी ऑल्सो। जैसे कोई पैकेजिंग है, अब वो बंदा प्रिंट नहीं करके देगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस केसेस में हमें कई बार प्रोडक्ट बंद करना पड़ता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। बट ऐसा हमारे केस में बहुत कम होता है। चलो मैं आपको इन्वेंट्री दिखाता हूँ कि हाउ वी डू इट। पहले हम इधर चलते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ डिस्पैच सेंटर जहाँ से हमारे सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं। तो हर आइटम के हिसाब से पैकेजिंग हमारे पास रेडीली अवेलेबल रहती है कि कैंडल किस में जानी है, कंघी किस में जानी है, ब्रश किस में जाना है, टिशू किस में जाना है, किस बॉक्स में जाना है। अगर वो पैक ऑफ 2 का है तो पैक ऑफ 2 का बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। ये नहीं कि हमें कोई रैंडम बॉक्स नहीं बना रखा, हमने पैक ऑफ 2 का बॉक्स ऑलरेडी बना के उसके अंदर ऑर्डर पैक करके ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी पैक ऑफ 2 बना हुआ प्रोडक्ट हो रहा है, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे ही जो इन्वेंट्री है वो रेडीली अवेलेबल रहती है, उससे हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहता है, उस तरीके से चलता है। ऐसे ही हमारे पास नीचे है जहाँ पे बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। आई शो द वे।
तो ये बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऊपर वाली मशीन पे बनते हैं। हमारा यहाँ पे पीछे कैंडल का सेटअप है। दिस इज़ इन हाउस कैंडल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। यहाँ पे हमारी कैंडल ये इसमें वैक्स पोर करके वैक्स मेल्ट होती है। देन दीज फीमेल्स जितना अच्छा एक स्पेशली चीज़ है, जो जितना भी हमारा कैंडल मैन्युफैक्चरिंग है वो हम सारा वुमेन ड्रिवन बिजनेस है, हमारा सारा वुमेन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग है। तो जितना भी कैंडल्स बनती हैं या कुछ पैकिंग का काम होता है, वी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वी हैव आर फीमेल। सो बिकॉज उनका इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उनमें फीमेल का हाथ काफ़ी अच्छा होता है। इन टर्म्स ऑफ साफ़ सफाई से काम करती है, वो अच्छे तरीके से पैकेजिंग होती है, स्पीड भी अच्छा है उनका इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दी लेबर डन। तो हमारे पास सारा स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक सारा हमारे पास रेडी रहता है। मतलब जिस तरीके से ऑनलाइन जाना है उस तरीके से हमारे पास सारा स्टॉक रहता है। हमारे पास हर तरीके की पैकेजिंग अवेलेबल रहती है, हर तरीके का प्रोडक्ट रेडी रहता है। जैसे हमारे पास ये पिछले अगले एक हफ्ते का स्टॉक रेडी है इन टर्म्स ऑफ टिश्यू पेपर जो जाने हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास रेडी है। जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट जाना है, जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे आई टोल्ड यू कि हमारे पास टॉयलेट पेपर का हमने एक छोटा SKU बनाया पैक ऑफ 3, तो ये हमारे पास ऑलरेडी पैक्ड पड़ा रहता है। हम यानी कि ऑन द स्पॉट पैक करते हैं। ऐसे हमारे पास हज़ारों SKU पैक करके रखे होते हैं कि जैसे ही ऑर्डर आया इसको डाला पैकेट में, बॉक्स में डाला, उसको भेज दिया। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, दिस इज अगेन आई टोल्ड यू वी यूज़ ओनली इको फ्रेंडली पैकेजिंग, वी डोंट यूज़ एनी प्लास्टिक पैक। जनरली आपको जो मार्केट में टॉयलेट पेपर या कोई भी टिश्यू पेपर के प्रोडक्ट आपको प्लास्टिक की पन्नी में या प्लास्टिक के लिफाफे में पैक कर मिलेगा। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास सारा यहाँ बॉक्स पैकेजिंग में मिलेगा या आपको पेपर पैकेजिंग में मिलेगा। सर यू टॉक्ड अबाउट द कॉस्ट। तो एक परसेप्शन है कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में वो यूजुअली हायर प्राइस एंड पे होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट थिंकिंग ऑफ द कस्टमर। इको फ्रेंडली कस्टमर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कभी भी महंगे नहीं होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। सी व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल इको फ्रेंडली? इट डिपेंड्स ऑन दैट। सस्टेनेबल मीन्स आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं विच आर एक्चुअली सस्टेनिंग इन द एनवायरनमेंट। तो उसको, अब टॉयलेट पेपर है, बना तो वो पेड़ से कटने से ही बना है, बट विच पेपर यू आर यूजिंग ए रिसाइकल पेपर, यू आर यूजिंग ए FSC सर्टिफाइड पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बना है, तो आई गेस वो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट करेगा जो प्लास्टिक पैकेजिंग वाला कॉस्ट करेगा। तो वी सी हाउ वी आर सस्टेनेबल, वी आर यूजिंग पेपर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्रोडक्ट, but we are not using a plastic packaging to pack that product. So this is how we are saving the environment. We are not using any plastic in the packaging. This is how we do it. That's commendable. तो सर ये जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड इट Yeah, absolutely. This is eco friendly color. Basically ये फ्लेक्सो मशीन होती है, एक इससे जो कलर डलता है, this is made of starch basically. ये स्टार्च बेस्ड कलर, जो कॉर्न स्टार्च हम खाते, जो कॉर्न हम खाते हैं उसका जो घर पे कॉर्न फ्लोर यूज़ होता है, इट्स अ सिमिलर स्टार्च, उसका ये कलर बनता है। दिस इज़ नॉट हार्मफुल बिकॉज इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फूड रैप है, बेसिकली बटर पेपर है, जिसके अंदर आप अपना चपाती या रोटी पैक करते हैं। इवन दिस पेपर विच वी यूजिंग, मार्केट में अगर आप बटर पेपर लेने जाओगे ना, आपको बहुत ही बेकार फेक प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, जिसके अंदर जो नॉर्मल लोग कागज़ यूज़ करें, विच इज़ नॉट फूड ग्रेड कागज़, बिना फूड ग्रेड वाला कागज़ पे आपको बटर पेपर बना के लोग चिपे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो सो वैसा वाला बहुत सारा प्रोडक्ट आपको मार्केट में, बट द पेपर वी आर यूजिंग दिस इज़ 100% फूड ग्रेड सर्टिफाइड है। पेपर जहाँ से हम ले रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन हम चेक करते हैं पेपर लेने से पहले, तो सर्टिफाइड पेपर ही यूज़ करते हैं। इवन द कलर जो हम जिनसे हम ले रहे हैं, जो ऊपर जो कलर लग रहा है, प्रिंट हो रहा है, वो भी सर्टिफाइड कलर है। हाँ, उसके अंदर भी हम पहले जिस वेंडर से हम सप्लायर से ले रहे हैं उसका पहले सर्टिफिकेशन चेक होता है, उसको प्रॉपर उसका तहकीकात होता है, फिर ही हम वो लेते हैं। So sir, what kind of customer segmentation do you like? सो कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें तो एज ए ऑलरेडी टोल्ड वी आर ए D2C ब्रांड। हम 99% हमारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन है। हम वी सेल थ्रू अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। अब अमेज़ॉन पे भी हमारे पास कुछ B2B कस्टमर्स भी आते हैं, दैन B2C कस्टमर भी आते हैं। सो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की रेंज की, तो हमारे पास टिश्यू पेपर प्रोडक्ट की पूरी एंटायर रेंज अवेलेबल है। अब जो टिश्यू पेपर की जो एंटायर रेंज है वो घर में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो होटल में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन जैसे मॉल्स हो गए, आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, तो उनमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वी हैव ए एंटायर रेंज फॉर दीज काइंड ऑफ कस्टमर। तो वी सेगमेंट आवर कस्टमर इन दीज वे। वी हैव ए इंस्टीट्यूशन कस्टमर, वी हैव ए कॉर्पोरेट कस्टमर, वी हैव देन होरेका जिसको हम होटल रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो कस्टमर होगा। देन द बेसिक कंज्यूमर तो हमारे पास है ही है, जो हाउस होल्ड कस्टमर वो तो हमारे पास है ही है। So 4 segmentation we keep it generally in mind while manufacturing these kind of product. उनके हिसाब से ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग सारा होता है।
जैसे होटल्स में छोटा वाला टॉयलेट पेपर ज़्यादा चलता है, हम छोटा बनाते हैं। रेस्टोरेंट में थोड़ा ठीक ठाक चलता है, घर में थोड़ा बड़ा चलता है ताकि वो पूरा महीना चलता रहे। अब होटल में क्या हो गया, आफ्टर कोविड देयर आर नॉर्म्स, पीपल आर द होटल के जो लोग हैं जो परचेज जो हाइजीन स्पेशलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि दे आर चेंजिंग दी टॉयलेटरी आप समझते हो, जैसे जो रूम्स के अंदर रखी होती है टॉयलेट पेपर, शैम्पू, सब कुछ, वो क्या कर रहे हैं कि हर कस्टमर के जाने के बाद वो टॉयलेटरी चेंज कर रहे हैं, वो रिफ़्रेश कर रहे हैं सारी टॉयलेटरीज़ को। तो उसमें क्या कि जो पेपर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था पहले। तो वी हैव कम अप विद द टॉयलेट पेपर विच आर वेरी स्मॉल बट इट्स अ गुड लुकिंग टॉयलेट पेपर बट वेरी स्मॉल, गुड फॉर दी होटल्स। तो उसमें क्या है कि उनका कंजम्पशन भी कम हो रहा है क्योंकि वो छोटा सा टॉयलेट पेपर है, जितना एक कस्टमर यूज़ करेगा, एक फैमिली यूज़ करेगी होटल के रूम में, वो यूज़ करेगा, उसके बाद उसको वी कैन थ्रो इट आउट, उसमें बचेगा ही नहीं कुछ, बहुत कम वेस्टेज है। प्लस उसमें है कि कॉस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। सो जितने भी होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, इनके साथ ना ये वाले, बिकॉज दिस इज़ अ डिस्पोजेबल एक्सपेंस फॉर दैट दोज काइंड ऑफ कंपनीज, तो वो दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जो छोटा टॉयलेट पेपर होगा उसमें कम पेपर लगेगा, वो कम कॉस्ट में मिलेगा, ईजीली अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें माइंड में रखते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते रहते हैं। So sir, you said that your major customers are like all the home care brands and hotels and all. So what is the product range that you have? सो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है। इफ यू टॉकिंग अबाउट होम, वी हैव एंटायर होम केयर रेंज, मतलब घर में इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉयलेट पेपर, किचन टॉवल, बटर पेपर। देन वी हैव अ रेंज ऑफ ओरल केयर विच इज़ टूथब्रश विच इज़ मेड ऑफ बैम्बू, अगेन इको फ्रेंडली रेंज। देन वी हैव नीम कॉम्स फॉर द हेयर। देन वी हैव सम डेकोरेटिव रेंज ऑल्सो, जैसे हमारे पास सेंटेड कैंडल है जिसका हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो सेंटेड कैंडल्स हैं जो घर में डेकोरेशन में, स्पेशली दिवाली पे। इसके अलावा हमारे पास फेस्टिवल रेंज बहुत सारी आ जाती है, जैसे क्रिसमस में हमारे पास वुडन क्रिसमस ट्री आ जाता है, होली के टाइम पे हम होली गुलाल आ जाता है। तो होली गुलाल जो हमारा काफ़ी स्पेशल है क्योंकि उसका जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बनता है। उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जो भी उसका कंपोजिशन है, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अस कि उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल, जो हमारा होली गुलाल आता भी है वो सारा इको फ्रेंडली है। और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो फ्लावर बेस्ड है, बेसिकली वो फूलों से और स्टार्च से मिक्स करके बना हुआ है। अगेन द स्टार्च इज़ देयर, तो फूलों और स्टार्च से मिलके वो होली गुलाल बना हुआ है। तो एंड फॉर दी दिस इज़ फॉर दी, जो मैं आपको बताया कि ये जो रेंज होगी तो हाउस होल्ड कस्टमर के लिए होगी। देन फॉर द इंस्टीट्यूशन इफ विल कम टू द कॉर्पोरेट होटल एंड इंडस्ट्री, तो इनके लिए हमारे पास रेंज ऑफ टॉयलेटरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल डेंटल किट जाती है होटल में, आपने अगर होटल में गया हो तो डेंटल किट मिलती होगी आपको, एक ब्रश होता है उसमें, एक टूथपेस्ट होता है, वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। हमारे पास होटल के लिए नीम कॉम्स अलग से हैं। देन वी हैव ए रेंज ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, तो है ही है जो होटल में यूज़ होते हैं, बटर पेपर, HRT, JRT, टॉयलेट पेपर जो यूज़ होते हैं होटल, वो हमारे पास एंटायर रेंज है फॉर दी होटल। एंड फॉर दी institution we have the entire range for their washrooms and like toilet paper है, M fold है जो यूज़ होता है स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, तो वो हमारे पास सारे अवेलेबल है।